बच्चों अस्सलाम वालेकुम। So, in the last lecture, we have learned about the anatomy and orthokinematics of the knee joint. We have learned about the number of articulations in the knee joint. There are two types of articulation. The one is tibiofemoral and the other one is patellofemoral. We have learned about the orthokinematics. We have learned about the movement of the patella during its patellofemoral joint movement. We have learned about the functions of the muscles crossing the knee joint, as well as plantar flexors and dorsiflexors, and that are soleus and gastrocnemius. ठीक है? At the knee joint, we have learned about the knee joint, the effect of knee joint on the gait cycle, all that movements that are going to happen during the gait. ठीक है? वो हम लोगों ने डिस्कस की थी. So in this lecture uh, we are going to learn about the number of conditions affecting the knee joint. We are going to learn the we are going to learn about the number of surgeries we are going to perform at the knee joint, whether these surgeries are related to the bone or the articular surfaces, ठीक है, or whether these surgeries are related to the articular cartilage, ठीक है, or whether these surgeries are related to the joint capsule, ठीक है, or towards other soft tissues, ठीक है. So there are number of surgeries which we can perform in order to manage or in order to reduces the number of signs and symptoms associated with the degeneration of the knee joint. ठीक है. So first of all, we are going to learn about the number of conditions. ठीक है. The first condition is the osteoarthritis. ठीक है. As you all know that osteoarthritis is a degenerative joint disease. It is commonly affecting the joints that are weight bearing, and you all know that the hip joints and the knee joints, both of these joints are weight bearing joints. Knee joint is more common as compared to the hip joint, and it is more common among females. ठीक है. After menopause, they have osteoporosis as well. So there are certain changes that are associated with uh, degeneration. ठीक है. Now, if we talk about osteoarthritis, whenever the osteoarthritis is going to develop, initially it will only causes pain at some range of motion of the knee joint. Let's say we can say that the patient complains of pain during complete flexion of the knee joint whenever he or she is going to sit on the floor via feet. मतलब जब हम पैरों पे ज़मीन पर बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के फ्लेक्शन, नी की जो फ्लेक्शन होती है डेट इज़ कंप्लीट यूजुअली. ठीक है, तो उसमें पेशेंट आपको कह सकता है कि जी मुझे किसी जॉइंट में पेन है. Whether it is in flexion or whether it is in extension, there is small range of motion that is going to hurt the patient. As soon as the degeneration is going to progress, it will causes more pain, and it will causes pain at the standing as well. ठीक है. जिसकी वजह से स्टैंडिंग में जब पेशेंट को पेन आती है तो पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती हैं. और जब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट क्या कर जाता है, बेड रिडन हो जाता है, एंड इन द सेम वे इट विल रिजल्ट इन अ डिसेबिलिटी. ठीक है. एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज ने एक इंडिविजुअल को कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया, बेड रिडन कर दिया, तो दैट इज obviously a significant change in someone's life. ठीक है. वो कहते हैं whenever the osteoarthritis is going to damage the joints of a patient or the knee joints particularly, there is a deformity that is going to occur with the osteoarthritis, and this deformity is known as
Genuvarum, ठीक है. Genuvarum, as you all know that when both of the knee joints go away from the center of the body, or goes away from the midline of the body, that is called genuvarum. Now why genuvarum occurs? Why? ठीक है. Obviously वो कहते हैं कि it all lies in the area or the site of the or the side of the tibiofemoral articulation that is going to involve in the degeneration. Now, there are you all know that most of the weight bearing is transferred through the medial side of the tibiofemoral articulation. जितना हमारा weight होता है बेटा, उसका जो maximum transfer होता है वो हमारी medial side of the tibiofemoral articulation से होता है, from the medial femoral condyle onto the medial tibial plateau and then onto the tibia. So whenever this transfer is going to occur, you know that जहाँ पर भी डिजेनरेशन स्टार्ट हुई, वो डिजेनरेशन अगर स्टार्ट होगी तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस एरिया को करेगी जहाँ पे ज़्यादा वेट बेयरिंग हो रही है. ठीक है. सो मीडियल साइड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट के जो नी जॉइंट्स हैं, ठीक है, दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रम. ठीक है. नॉकनी जीनुवेरम डेवलप हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज एसोसिएटेड विद द डिफॉर्मिटी. ठीक है. अब वो कहते हैं देयर आर फैक्टर्स. ओबेसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फीमेल्स में बहुत कॉमन है. इसके अलावा वो कहते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है. ठीक है. प्रीवियसली कहीं पर ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद आपका degeneration start हो जाए, तो that is important. So there are different factors that are going to affect the knee joint. Now if we talk about Excuse me, sir. जी बेटा. सर आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही. बेटा असल में इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है. तो वो लेक्चर कंप्लीट होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मैं अपलोड कर दूंगा, अभी हुआ नहीं है. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग. ठीक है. Okay, so the next is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, it is an actually inflammatory arthropathy. As you all know that rheumatoid arthritis starts by affecting the small joints of the fingers and the hands and the hands as well. ठीक है. And it is usually bilateral. ठीक है. अब वो कहते हैं कि rheumatoid arthritis can also affect the knee joint. ठीक है. But it is less common. ठीक है. और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी बोथ नी जॉइंट्स की, दैट विल बी bilateral. It will not be unilateral. Osteoarthritis can be a unilateral condition. ठीक है. As well as a bilateral condition, but rheumatoid arthritis of the knee joint are always bilateral. So वो कहते हैं कि rheumatoid arthritis जब भी knee joint को इफेक्ट करेगा, obviously it is an inflammatory arthropathy of the synovial membrane. ठीक है. साइनोवियम को इफेक्ट करेगा, साइनोवाइटिस डेवलप होगा. साइनोवाइटिस एक्चुअली आगे से आपकी इन्फ्लेमेशन कैस्केड एक स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. पूरे जॉइंट्स में जॉइंट इफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं कि जो आपकी जॉइंट की मूवमेंट है वो लिमिट होना शुरू होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी. ठीक हो गया. वो कहते हैं यही साइनोवाइटिस जो डेवलप हुआ था, इसी ने ही आगे चलकर आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना है, और इसी ने ही आपकी बोन इरोजन्स को प्रोड्यूस करना है. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता. सो that is how the rheumatoid arthritis is going to affect the knee joint. And the next one is the post immobilization arthritis. ठीक है. वो कहते हैं post immobilization arthritis means कि after a surgery or after a trauma, whenever you are immobilized, ठीक है, the knee joint is usually going to be become hypomobile due to immobilization. If it is based एक सिंगल वीक के बाद एक सिंगल वीक ऑफ इमोबिलाइजेशन के बाद आपका नी जॉइंट जो है वो हाइपोमोबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडहीजन्स बन जाएंगी,
मसल्स जो हैं सराउंडिंग के वो उनमें कॉन्ट्रेक्चर्स बन जाएगा, क्वाड्रिसेप्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, ठीक है। और जो नी जॉइंट इटसेल्फ है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड के स्टैटिक रहने की वजह से वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, एडहेजन्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो डेट इज अ पोस्ट इमोबिलाइजेशन आर्थराइटिस, ठीक है। और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, ठीक है, डेट इज गोइंग टू ऑकर आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, वेदर दिस ट्रॉमा इज टूवर्ड्स टू द patellofemoral articulation or towards the medial side of the tibiofemoral articulation or towards the lateral side of the tibiofemoral articulation, it is going to affect the knee joint, ठीक है, as well, ठीक है। जहाँ पर भी ट्रॉमा हुआ है उस साइड की डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर उसको रिहेबिलिटेट नहीं सही किया जाता, जरूरी नहीं है कि जब भी इंजरी हुई है तो होगा, जरूर होगा, लेकिन इफ इट इज नॉट प्रॉपरली रिहेबिलिटेटेड देन, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात की समझ आ गई? Yes, sir. सो now we are going to start with the type of surgeries we are going to perform. Now the type of surgeries depend on various factors. The first one is the patient sign and symptoms. The patient sign and symptoms mean if there is a more severity, we will go towards an aggressive type of surgery. If there are mild sign and symptoms, we will go towards a lighter type of surgery, ठीक है। लाइटर टाइप ऑफ सर्जरी मीन्स, ठीक है, कि हम रिप्लेस नहीं कर देंगे जॉइंट को, बल्कि हम जॉइंट के सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, किसी कैप्सूल को, किसी लिगामेंट को, किसी साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ठीक है, किसी मिनिस्काई को, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की सर्फेसिस को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज मेंट टू बी द डेट इज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। जितने ज़्यादा स्वेयर उतनी ही एग्रेसिव सर्जरी, जितने कम स्वेयर होंगे उतनी ही लाइटर सर्जरी होगी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डेट इज द लेवल ऑफ द एक्टिविटी एंड द एज, ठीक है। एक्टिविटी का जो लेवल होगा और जो एज होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी सर्जरी एग्रेसिव होनी चाहिए या लेस एग्रेसिव होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए, वेदर इट विल बी one that is going to immobilize the joint, ठीक है, और गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द जॉइंट मोबिलिटी। मतलब अब ऐसे सर्जरीज हैं जो कि जॉइंट की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देंगी, तो वो यंगर इंडिविजुअल्स के तो लिए तो नहीं हम यूज़ कर सकते, हाँ, लेकिन वही सर्जरीज जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को कम कर देंगी वो हम ओल्डर एज इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उतना है, वो असेंशियल अपनी रेंज ऑफ मोशन जो उनको मिली हुई होगी उसमें वो अपना काम परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन क्योंकि यंगर इंडिविजुअल की नीड्स एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उसको एक बेहतर रेंज ऑफ मोशन रिक्वायर्ड होती है। सो द पेशेंट एज एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी डिपेंड इज ऑल्सो फैक्टर, ठीक है, फॉर आर टाइप ऑफ सर्जरी। The third factor is about the type of the disease, which disease is going to affect, whether it is a progressive disease or whether it is a static disease. Obviously, if there is a static disease, we are going to have a simple, we are going to perform a single surgery, ठीक है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर 20 to 30 years हमें कोई भी हमें तब कोई जाके 20 या 30 सालों के बाद कोई इशू आ सकता है नज़र। लेकिन वो कहता है कि ऐसी जितनी भी डिजीजेस हैं जो कि प्रोग्रेसिव हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज हैं, ठीक है, उनमें जो है वो आपकी जो टाइप ऑफ सर्जरी होगी वो ऐसी होगी कि जिसमें आप सबसे पहले मिनिमम लेवल से स्टार्ट करोगे सर्जरी की और फिर आप मैक्सिमम लेवल तक जाओगे। मिनिमम लेवल का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले किसी आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्मूथ आउट कर लेना है, फिर आगे आप जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्या करोगे, रिसेक्ट करना शुरू कर दोगे। पहले छोटा पोर्शन करोगे, फिर उसके बाद पूरे साइनोवियम को भी रिसेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज द टाइप ऑफ the surgeries are going to depend on the type of surgeries are going to depend on the condition, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द सर आर्टिकुलर कार्टिलेज। जी बेटा। सर स्लाइड्स नहीं शो हुई। बेटा मैंने पहले भी बताया है कि ना लेक्चर में नहीं बना पाया, डेट्स वाई स्लाइड्स नहीं शो हो रही।
ओके सर, सर हमने लेट ज्वाइन किया। हाँ जी, okay, so that the second last factor is about the patient's the severity of the articular cartilage, ठीक है, the damage done to the articular cartilage. नाउ दिस टाइम भी अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे, ऐसे सर्जरी की तरफ जाएंगे जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो मैक्सिमम डिजनरेशन है उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। ऑब्वियसली वो ऐसी सर्जरी होगी जहाँ पर हमें प्रोस्थेटिक इम्प्लांट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम आर्टिकुलर कार्टिलेज को तो नहीं वो करवा सकते, आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिप्लेस कर दें, ठीक है, विद अ सॉफ्ट पैड और समथिंग एल्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द जॉइंट डिफॉर्मिटी। वो कहता है कि डिफॉर्मिटी भी मैटर करती है। अच्छा, एक मैंने एक और बात बतानी थी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जीनू वेरम डेवलप होता है, इसी तरीके से ऑस्टियो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जीनू वेलगम डेवलप होता है, ठीक है, नॉकनीज डेवलप होते हैं, बेटा याद रखिएगा। जीनू वेलगम के साथ नॉकनीज, जीनू वेरम के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जीनू वेरम, ठीक है। जिनुवेल्गम इज इन रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। नाउ वो कहते हैं कि जी सबसे अब हम बात करने लगे टाइप ऑफ सर्जरीज की, ठीक है। हमने पहले बात कर ली फैक्टर्स की। नाउ the first surgery is going to be the debridement, the arthroscopic debridement. Arthroscopic debridement means we are going arthroscopically into the joint cavity and we are going to remove the waste metabolites. We are going to remove the broken articular cartilage pieces, ठीक है। We are going to we are going to remove foreign particles, ठीक है, or we are going to remove the loose bodies within the joint cavity, ठीक है। This is arthroscopic debridement, ठीक है। Now this arthroscopic debridement is done for initial stages of a degeneration when the articular cartilage is going to be damaged, ठीक है, and results in the formation of loose bodies, ठीक है। Now the second one is arthroscopic aberration, ठीक है। Now वो कहते हैं जी arthroscopic aberration is to we used it uh, arthroscopically, ठीक है, and through arthroscopic usage we are going to move into the joint cavity and where we see an irregularities of an articular cartilage, or where we are going to where we see there is uh, loss of smoothness or there is roughness of the articular cartilage surface, we are going to smooth that surface, ठीक है, so that the gliding mechanisms remain pain free, ठीक है। एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी का मैं क्या बता रहा हूँ कि हम आर्थ्रोप्लास्टी के थ्रू, आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट कैविटी में जाते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज की सरफेस को चेक करते हैं कि कहीं पर कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। अगर कहीं पर कोई इरेगुलरिटी नहीं मिलती तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस अगर कहीं आपको कहीं पर आपको इरेगुलरिटी मिलती है, ठीक है, रफनेस मिलती है, तो हम उस रफनेस को स्मूथ आउट कर देते हैं, डेट इज एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है साइनोवेक्टमी और ऑस्टियोटमी, ठीक है। साइनोवेक्टमी आप सबको पता है कि आपने जॉइंट की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको कट कर लिया, ठीक है, उसको कट करके रिमूव कर दिया, डेट है साइनोवेक्टमी, ठीक है। ऑब्वियसली साइनोवेक्टमी हम उनमें पेशेंट्स में करते हैं जिनमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है अगर एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाए तो it is going to destroy the whole कहते इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर एक पोर्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। सो दैट इज साइनोवेक्टमी एंड द सेकंड वन इज ऑस्टियोटमी, ठीक है। वो कहते हैं ऑस्टियोटमी जो है दैट इज गोइंग टू बी एंड द सर्जरी
that is going to be involving the bones, ठीक है, or the articular cartilage, ठीक है, sorry, or the simply the bones, ठीक है। जब भी आप बोन्स को कुछ करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो उसमें आपके पास ऑस्टियोटमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ऑस्टियोटमी में हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि वी आर गोइंग टू manage the deformities associated with the associated with different joint conditions, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेटा पहले एग्जांपल बताई है कि जी मैंने पहले क्या एग्जांपल बताई, सॉरी मैंने क्या बताया कि जी डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है, जीनू वेरम होती है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और जीनू वेलगम होती है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सो बेटा इस चीज को अच्छे तरीके से देखना। ऑस्टियोटमी इज, बेटा मेरे नीज नजर आ रहे हैं, ऑस्टियोटमी, ठीक है, नीज नजर आ रहे हैं जी सर, थोड़ा सा नीचे करें। एक मिनट। थोड़ा सा सर और नीचे। So वो कहते हैं कि let's say that is an away movement away from the center, ठीक है। This is genu varum, ठीक है, associated with osteoarthritis. Now कहते हैं what osteotomy is going to help, ठीक है। वो कहते हैं जब भी डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, आपकी जो ट्रांसफर ऑफ वेट बेयरिंग है ऑब्वियसली वो भी इफेक्ट हो जाएगी, ऐसे ही है ना, ठीक है। यस तो सर। जब वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ वेट बेयरिंग इफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जब जब वेट बढ़ेगा तब तक पेशेंट को ज्यादा पेन होगी, ठीक है। तो ऑस्टियोटमी हम लोग यूजुअली इसलिए करते हैं ताकि जो वेट बेयरिंग है, ठीक है, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। और ये यूजुअली वो कहते हैं कि आप डिस्टल टिबिया, डिस्टल पोर्शन ऑफ द टिबिया, सॉरी डिस्टल पोर्शन ऑफ द फीमर या प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द टिबिया को, इन दोनों में से किसी भी एक बोन को आप सिलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर ऑस्टियोटमी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वो कहते हैं हम यूजुअली किसको करते हैं, टिबिया को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ये टिबिया के ऊपर ऑस्टियोटमी करते हैं। सो अ वेज शेप्ड ऑस्टियोटमी, टाइप ऑफ ऑस्टियोटमी इज वेज शेप ऑस्टियोटमी। वेज शेप ऑस्टियोटमी क्या करती है, लेट्स से ये मेरे दोनों जो नीज हैं ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही है, लाइक दिस, ठीक है। सो हम बाहर की तरफ क्या करते हैं कि एक कट लगाते हैं, ठीक है, दो एंड्स के, लाइक दिस, ठीक है। मैं अब ये लेट्स से दिस इज द आउटर सरफेस, ठीक है बेटा, दिस इज द आउटर सरफेस, और लाइक दिस, ऐसे ही है ना, ये आपका नी जॉइंट है लेट्स से, ठीक है, और ये इस तरीके से ये आपकी टिबिया है और ये आपकी फीमर है। बेटा समझ आ रही है बात की, दैट इज जी फीमर, सर। that is tibia and that is the knee joint। हमने क्या किया, वेज शेप्ड ऑस्टियोटमी की, जैसे बेटा केक का स्लाइस काटते हैं ना, ठीक है, दो एंड्स के ऊपर से हम एक वी शेप्ड स्लाइस काट लेते हैं केक का, ऐसे ही है ना, ठीक यस है। सर। इसी तरीके से हमने जो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द टिबिया है यहाँ से एक केक का स्लाइस काट लेना है, बोन का स्लाइस काट लेना है केक की शक्ल में, ठीक है। दो पॉइंट्स से हम लोगों ने क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट की तरफ कट लगाने हैं, ठीक है, लाइक दिस, और यहां से हमने वो स्लाइस निकाल लेना है, ठीक है। जैसे ही वो स्लाइस निकलेगा आउटर पोर्शन ऑफ द टिबिया से, हम उन दोनों पोर्शंस को, जहां वो जो दोनों एंड्स हैं, ठीक है, जो क्या वेकेंट है वहां, उनको क्या करेंगे, आपस में सुचर करेंगे। जैसे ही हम इनको सुचर करते हैं तो आपकी जो नीज की अवे मूवमेंट होती है, डेट विल मूव इनटू द सेंट्रम, ठीक है। वो आपकी जो ये जो जीनू वेरम होता है, जो बहुत स्वेरिटी है, ठीक है, वो किस में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है। समझ आ गई बात की बेटा? यस सर। जी सर। So this is how the osteotomy is going to help the the transfer of the weight bearing, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो पास्ट ईयर्स में ये जो ऑस्टियोटमी है ये काफी हेल्पफुल होती है, और आर्थ्रोप्लास्टी में ये आपको आर्थ्रोप्लास्टी, लेट से अगर आज एक बंदे को आर्थ्रोप्लास्टी की जरूरत थी, हमने उसमें ऑस्टियोटमी परफॉर्म की है और उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसको बेहतर कर दिया, उसकी वेट बेयरिंग को बेहतर कर दिया है, तो उसकी पेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए, कम हो गए। तो वो कहता है कि जो आगे उसकी जो आर्थ्रोप्लास्टी है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद जाके वो क्या कहता है उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया।
मतलब 10 ईयर्स तक जो है वो आपकी डिले हो सकती है सर्जरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोटमी। ना वो कहते ठीक हैं है सर। इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, मतलब जो पुराने लोग या मतलब आज से 10 से 15 साल पहले जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई, ये जो एकदम एडवांसमेंट आई है फ्रॉम 2000, ठीक है, उससे पहले तक वो कहता है कि जी आपके पास जो थी वो हाई टिबियल ऑस्टियोटमीज परफॉर्म की जाती थी, ठीक है, और उसमें वो कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हम उसमें परफॉर्म करते थे जो कि एक्टिव पेशेंट्स होते थे और जो कि जिनकी जो एज होती थी वो 50 या 55 से कम होती थी, ठीक है, सिर्फ उनके लिए हाई टिबियल ऑस्टियोटमी परफॉर्म की जाती थी और इसके अलावा पेशेंट्स के लिए नहीं परफॉर्म की जाती थी। एक क्या है एक्टिव पेशेंट्स और एक कौन से हैं 50 से 55। अब जो है आपकी ऑस्टियोटमी वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, बस आपका बोन स्टॉक पूरा होना चाहिए, ठीक है, अब आप ऑस्टियोटमी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो लास्ट सर्जरी है दैट इज गोइंग टू बी आर्थ्रोडिसिस। आर्थ्रोडिसिस ऑब्वियसली वो कहता है कि नी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है या फिर अल्टीमेटली क्या होगी आर्थ्रोडिसिस होगी। आर्थ्रोडिसिस इज द लास्ट ऑप्शन कि जब आप इतनी सिग्निफिकेंटली स्वीयर हो जाए आपके साइन एंड सिम्टम्स तो हम किसकी तरफ जाते हैं आर्थ्रोडिसिस की तरफ जाते हैं, हम फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते, ठीक हो गया। सो दीज आर द टाइप ऑफ सर्जरीज अफेक्टिंग। वो कहते हैं जो मर्जी आप सर्जरी यूज करो लेकिन जो आपके गोल्स हों वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि आपने पेन को रिड्यूस करना है, आपने साइन एंड बेटा पेन का मतलब सिर्फ पेन ही नहीं होता, ऑब्वियसली साइन एंड सिम्टम्स, सो यू हैव टू रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स और पेन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट symptom है, ठीक है, so you have to reduce this that symptom and the sign as well, ठीक है। So the next goal is you have to correct the deformities, ठीक है, और you have to correct the deformities and the next one is you have to improve the weight bearing, ठीक है, और the lower extremity and you have to improve the functioning of the लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शनिंग, लोअर एक्सट्रीमिटी को भी इम्प्रूव करना और उसकी वेट बेयरिंग को इम्प्रूव करना या फंक्शन होना चाहिए, ठीक हो गया। नाउ वो कहते हैं कि जी व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोसीजर्स वी आर गोइंग टू use for the damage of the articular cartilage, ठीक है। Now there are different types of the procedures we use for management or for रिपेयर ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि जी आपके पास सबसे पहले जो आपके पास प्रोसीजर है, जो सबसे पहला प्रोसीजर है, ठीक है, डेट इज अ माइक्रो फ्रैक्चर। अब वो कहते हैं कि माइक्रो फ्रैक्चर क्या है, वो कहते हैं कि माइक्रो फ्रैक्चर हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर है वो हम यूज करते हैं या तो मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल के लिए या फिर लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल के लिए या फिर मीडियल टिबियल प्लेटियो के लिए या फिर लेटरल टिबियल प्लेटियो के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि या फिर हमारा ये यूज होता है पेटिला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं माइक्रो फ्रैक्चर, ठीक है। वो क्या कहते हैं माइक्रो फ्रैक्चर जो है वो हम आर्थ्रोस्कोपिकली मैनेज करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग प्लान करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोस्कोप वी मूव इनटू द जॉइंट कैविटी, ठीक है, और उस जॉइंट कैविटी में हम लोग जाके क्या करते हैं कि हम लोग एक होल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दैट विल मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज टिल द बोन मैरो, ठीक है। और वो कहते हैं ये जो स्मॉल बहुत छोटा सा होल होता है, ठीक है, ये नहीं कि बहुत बड़ा होल, देयर इज अ फ्यू मिलीमीटर्स, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स का हम लोग होल करते हैं, ठीक है, यूजुअली वहां पर जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वहां पर होल करके हम लोग सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज से टिल द बोन मैरो वहां तक होल करते हैं। और एक्चुअली उस होलिंग का मकसद क्या होता है कि जब से ये होल होगा तो ये जो बोन मैरो है, ठीक है, एक तो वो एक्टिवेट होगी, स्टिमुलेट होगी और ये जो सराउंडिंग के सॉफ्ट टिश्यूज हैं ये आपके क्या हो जाएंगे,
लेस पेनफुल हो जाएंगे। ठीक हो गया। So this is all about this is about microfractures, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोग्राफ्ट का और एलोग्राफ्ट, ठीक है। एलोग्राफ्ट क्या है कि अगर आपने कहीं और से ग्राफ्ट लिया है तो डेट विल बिकम एलोग्राफ्ट, अगर आपने खुद से लिया है तो डेट विल बिकम ऑटोग्राफ्ट। सही है। सो ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज थी, ठीक है। उस आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया विद अ हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो डेट इज ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है बेटा। इस बात में कोई मुश्किल, ठीक है। वो कहता है कि ये भी जो आपका प्रोसीजर है या तो ये आर्थ्रोस्कोपिकली किया जाता है या फिर मिनिमम ओपन प्रोसीजर किया जाता है। ओपन सर्जरी की जाती है लेकिन मिनिमम इन्वेसिव सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, बहुत इसके लिए बड़ी सर्जरी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जी ये जो हमने ऑटोग्राफ्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है, ये ज़्यादातर उनके लिए यूज़ होती है जिनमें आपके जो लीजन्स होते हैं वो आपके वेट बेरिंग एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और वेट बेरिंग एरिया यूजली आपका मीडियल टिबियल फिमोरल मीडियल टिबियो फिमोरल आर्टिकुलेशन है। सो द नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये जो डोनर साइट है, ठीक है, जो जो आपने डोनेट जहां पर करनी है, ठीक है, वो कहते हैं कि सॉरी जो जहां से आपने एक्सरसाइज करना है हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो एरिया होना चाहिए जहां पर वेट बेरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। एक बात, और वो कहते हैं कि एक वो चीज जहां पर आपकी जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, ठीक है, आपने उन एरियाज को चूज करना है ताकि आप वहां से आर्टिकुलर कार्टिलेज को ले सको और आप उनको ट्रांसप्लांट कर सको। ऐसे किसी एरिया से नहीं लेना जहां पर आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, या फिर आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या कर रहा है, वहां पर वेट बेरिंग हो रही है, ठीक है। सो हमेशा ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ से आपने ग्राफ्ट को लेना है, ठीक है। सेकंड सर सर्जरी इज, जी बेटा। सर कैमरा अपनी तरफ कर लें ताकि हमें थोड़ी अच्छी समझ आए। ठीक है बच्चों। So the third type is for repair of the articular cartilage is autolog ऑटोलोगस उसको बोल देते हैं, ठीक है। या फिर वो कहते हैं कि सिंपली ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांटेशन है, ये भी जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ी है, ठीक है। दिस वन इज ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, ठीक है। ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन क्या है कि आपने दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है। ये ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांटेशन थी, ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन थी, ठीक है। और दिस वन इज ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। तो ये जो ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो आपने हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज लेना है, उस हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज से आपने क्या करना है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि कार्टिलेज सेल्स हैं, ठीक है, जिनसे आपके ऑस्टियोक्लास्ट और जिनसे आपके कॉन्ट्रोब्लास्ट बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं या ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं, लेकिन जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं या कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने एक हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज लेना है किसी भी डेड बॉडी से, ठीक है, और आपने उधर से क्या करना है, कॉन्ड्रोसाइट्स लेकर आने हैं, ठीक है। आपने उस आर्टिकुलर कार्टिलेज को अलाउ करना है कि आप उसकी ग्रोथ करवा सको, उन कॉन्ड्रोसाइट्स की ग्रोथ करवा सको किसी मीडिया के अंदर, ठीक है।
उस हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज से क्या ले लिया आपने, कॉन्ड्रोसाइट्स एक्सरसाइज किया और उन कॉन्ड्रोसाइट्स को आपने क्या करना है, एक मीडिया के अंदर ग्रो करवाना है। और जब वो मीडिया के अंदर ग्रो हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या करना है, उन कॉन्ड्रोसाइट्स को लेके उस इंडिविजुअल की वो जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रहा है उस इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो कहते हैं कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर थे नंबर के अंदर, मल्टीपल नंबर्स के अंदर, वो वहां पर जाके आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर आ जाता है कि जी कॉन्ड्रोसाइट्स की मेच्योरिटी कितनी है। वो कहते हैं अगर तो इमेच्योर हो रहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, सॉरी, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट की कितनी मेच्योरिटी है, अगर तो कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर रहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो डैमेज को फिल नहीं कर सकेंगे। और अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट कम हो गए हैं, ठीक है, या अगर वो उनकी वो नहीं है, मेच्योरिटी नहीं अचीव हुई, तो ऑब्वियसली वो फिर किसकी तरफ जाएंगे, आपकी फर्दर डैमेज की तरफ जाएंगे, या वो उसको हील नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी भी अदर आर्टिकुलर सरफेस को, ठीक है, या अदर किसी और जॉइंट सरफेस से, किसी और जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज से आर्टिकुलर कार्टिलेज को लेंगे, ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को लेके वहां पर ट्रांसप्लांट कर देंगे जहां पर आपको जरूरत है, जहां पर आपका डैमेज चल रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो डैमेज होता है, ठीक है, लेट्स से कि नी जॉइंट में डैमेज है, ठीक है, तो आपका नी जॉइंट में कोई मीडियल पोर्शन इन्वॉल्व है डैमेज के अंदर, ब्रेकेज हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि हमने कहीं और से लेना है, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। वो कहते हैं यूजुअली अगर तो किसी हेल्दी इंडिविजुअल का मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी डेड बॉडी का भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ले सकते हो। वहां से आप आर्टिकुलर कार्टिलेज लेते हो जो कि बिल्कुल ठीक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, और वो आप उस जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हो जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हुआ हुआ है। सो दैट इज ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, और सॉरी दैट इज एलोग्राफ्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांटेशन। बेटा याद रखना है, ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है, ठीक है, जो ऑटोग्राफ्ट है वो छोटे लीजन्स के लिए, वो छोटी जहां पर डैमेज जो है वो छोटा होना 2 से 4 सेंटीमीटर का, वहां पर ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होगी। जहां पर 4 सेंटीमीटर से बड़ा डिफेक्ट हो, डैमेज हो, ठीक है, वहां पर क्या होगी, आपकी एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होगी। ठीक है बेटा। जी सर। इसके बाद वो कहते हैं कि आपके जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ठीक है, आफ्टर रिपेयर ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिहेबिलिटेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज में। और वो कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो हीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है। पहली बात सिर्फ किस वजह से, वेस्कुलैरिटी की वजह से। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ व्हाइटिश टिश्यू, इसकी वेस्कुलैरिटी बहुत कम होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हैव अ बेटर रिहेबिलिटेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हम लोग जो कंप्लीट वेट बेयरिंग होता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें ऑलमोस्ट हमारा जो वेट बेयरिंग, कंप्लीट वेट बेयरिंग है, वो हम लोग अलाउ नहीं करते ऑलमोस्ट 8 to 12 वीक्स तक। ठीक है, 8 से 12 हफ्तों के लिए हमारी वेट बेयरिंग जो होती है वो कंप्लीटली खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इमोबिलाइज रखते हैं पेशेंट को और वेट बेयरिंग नहीं अलाउ करते। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम लोग नाइट में नाइट सप्लिंटिंग्स यूज करवा सकते हैं, हम लोग पार्शियल वेट बेयरिंग के वक्त प्रोटेक्टिव सप्लिंट्स यूज करवा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग द वेट। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे, बाईपासिंग द नी जॉइंट। जब आप नी जॉइंट को बाईपास कर दोगे तो ऑब्वियसली वो जो ट्रांसमिशन थी वेट बेयरिंग फोर्सेस की वो खत्म हो जाएगी।
तो ये जितने भी सप्लिंट्स होते हैं ना बेटा, डायनामिक सप्लिंट्स हो गए या स्टैटिक सप्लिंट्स हो गए, जो नी जॉइंट के ऊपर होते हैं, इनका ज्यादातर फंक्शन यही होता है कि ये वेट को बाईपास करवा देते हैं। ठीक है, सो ये जितने भी प्रोटेक्टिव सप्लिमेंट्स हैं ये आप यूज कर सकते हो फॉर एक्टिविटीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्टिविटीज, और इसके अलावा कहते हैं सप्लिमेंट्स जो है वो आप नाइट्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जी आपने एक्सेप्ट जो आपकी सॉरी एक्सटेंशन है, ठीक है, आपने ज़्यादातर फोकस उसके ऊपर करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो फ्लेक्शन होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, हमने ज़्यादातर जो इमोबिलाइजेशन भी है या हमारी जो ज़्यादातर फोकस है वो हमारा एक्सटेंशन की तरफ होना चाहिए, नी जॉइंट एक्सटेंशन की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं जब भी नी जॉइंट एक्सटेंशन होगी एक्टिवली, ठीक है, जब पेशेंट परफॉर्म करेगा तो दैट विल हेल्प इन मेक help in distributing the synovial fluid all across the articular cartilage। जब synovial fluid आपके तमाम articular cartilage के सराउंडिंग में सर्कुलेट करेगा तो उसकी रिपेयरिंग बेहतर होगी, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी साइनोवियल फ्लूइड की, और मैक्सिमम जो वेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो जा सकेंगे, और मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो सकेंगे। ठीक हो गया। सो ना वो कहते हैं ये जो आपके ये जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के, ठीक है, इसके लिए वो कहते हैं कि आपकी इंडिकेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपने जितने भी प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं इनमें वो कहते हैं सबसे पहली बात ये है कि आपके इंडिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो वो कहते हैं इंडिकेशंस में सबसे पहले वो कहते हैं कि आपका सिम्टोमेटिक नी जॉइंट होना चाहिए, जिसमें आपके पास एविडेंस हो कि जी आर्टिकुलर कार्टिलेज वाकई ही उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें वाकई ही कोई ब्रेकेज है, उसमें वाकई कोई डैमेज है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के रिपेयर के अंदर। तो साइड्स में वो कहते हैं सबसे पहले आपके पास आ जाता है वेट बेरिंग पोर्शंस। ठीक है, जितने भी वेट बेरिंग पोर्शंस हैं टिबियोफिमोरल आर्टिकुलेशन के या पेटलोफिमोरल आर्टिकुलेशन के, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ट्रॉक्लियर ग्रूव आ जाता है, ठीक है, जो ऑब्वियसली पेटलोफिमोरल आर्टिकुलेशन का हिस्सा है। इंटरकोंडाइलर ग्रूव भी उसको हम बोलते हैं, जिसमें आपकी पेटला जो है वो मूव करती है अप एंड डाउन। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी जितने भी पेटला के आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, जिसको हम लोगों ने बोला था कि पेटला के क्या हैं, फेसेट्स हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब भी ये तीनों आर्टिकुलर सरफेसेस, इनमें से कोई भी एक आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयर के लिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो सिलेक्शन है कि हम कौन सी सर्जरी यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हम ऑटोग्राफ्ट यूज करेंगे, हम एलोग्राफ्ट यूज करेंगे, हम लोग इम्प्लांटेशन करेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है, तो हम कौन सी सर्जरी यूज करेंगे, इसकी सिलेक्शन जो है वो कहते हैं डिपेंड करती होती है आपके डेप्थ ऑफ लीजन के ऊपर। डेप्थ ऑफ वो कहता है कि जी डेप्थ कितनी है डैमेज की। ठीक है, डीप कितना है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है एक सेकंड जो आपके पास फैक्टर आ जाता है, डेट इज अ साइज। साइज कितना है, ऑब्वियसली 2 से 4 सेंटीमीटर है, 4 से ग्रेटर सेंटीमीटर का है तो कितना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जी लोकेशन आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। वो कहते हैं कि जी जो वेट बेरिंग एरियाज हैं, ठीक है, उनमें कैसे होगी, नॉन वेट बेरिंग एरियाज में कैसे होगी। सो कहते हैं पोजीशन क्या है उस डेप्थ उस डैमेज की। ठीक है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में होगा। उसके बाद कहता है कि जी पेशेंट का ऑब्वियसली पेशेंट की अपनी एज क्या है। ठीक है, वो इस एक सर्जरी के बाद इसकी रिहेबिलिटेशन के साथ वर्कआउट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन सेलेक्टिंग अ क्राइटेरिया और इन सेलेक्टिंग अ सर्जिकल ऑप्शन। ठीक है, टू रिपेयर अ आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज। ठीक है, नाउ वो कहते हैं कि नेक्स्ट इज ऑल अबाउट साइनोवेक्टमी। ठीक है, साइनोवेक्टमी के लिए वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है कि व्हेन देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इट इज अफेक्टिंग द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इट विल
Synovectomy is usually help in reducing the number of sign and symptoms, ठीक है, suffering from rheumatoid arthritis, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी इसमें हम लोग इसका प्रोसीजर क्या होता है साइनोवेक्टमी का, वो कहते हैं इसमें हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली इसको रिपेयर करते हैं, सॉरी आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग जॉइंट कैविटी के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, और जॉइंट कैविटी में जाके हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी आपकी साइनोवियम है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है, इन्फ्लेम्ड है, डैमेज हो रही है, ठीक है, विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, जितनी हमसे वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेट आर्थ्रोस्कोप, ठीक है। आर्थ्रोस्कोप में इतने प्रोसीजर्स होते हैं कि वो इजीली हम लोग उसको कट कर लेते हैं और रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जी यूजुअली ड्यूरिंग साइनोवेक्टमी हम लोग एक पार्शियल, कंप्लीट नहीं, एक पार्शियल मेनिसेक्टमी करते हैं, ठीक है। मेनिस्कस को हम लोग पार्शियली क्या कर देते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है, वो कहते हैं कि जी जो हमारी ये जो साइनोवाइटिस होती है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी अटैचमेंट्स हैं विद द सराउंडिंग आर्टिकुलर, विद द सराउंडिंग आर्टिकुलर टिश्यूज, ठीक है। तो वो कहते हैं साइनोवाइटिस की वजह से क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग का आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, और जो सराउंडिंग की आपकी मेनिस्काई है, ठीक है, वो चाहे मीडियल मेनिस्काई हो, वो चाहे लेटरल मेनिस्काई हो, वो कहते हैं सराउंडिंग जो मेनिस्काई हैं वो क्या हो जाती हैं, उनमें टीयर आना शुरू हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग साइनोवाइटिस। दैट्स व्हाई वी allow to have a partial synovectomy after a we allow to have a partial meniscectomy, ठीक है, ड्यूरिंग साइनोवेक्टमी। साइनोवेक्टमी परफॉर्म करते हुए पार्शियल मेनिसेक्टमी जरूर करनी है, ठीक हो गया। इसमें भी वो कहता है कि हम लोग आर्थ्रोस्कोपी के ऊपर ज्यादा तरजीह देते हैं एज कम्पेयर टू ओपन प्रोसीजर, ठीक है। ऑब्वियसली आप सबको पता है इनके डिफरेंस का कि आर्थ्रोस्कोपी में क्या होगा, डेट इज अ मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है, इसमें छोटे छोटे से कट लगाए जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफ पेन नहीं होती। लेकिन जो आपका ओपन प्रोसीजर होता है इसमें पेन भी बहुत होती है, ठीक है, और कट भी आप सबको पता है कि बहुत बड़ा लगाया जाता है, जिसको आप बाद में जोड़ने में भी मसला आएगा, ठीक है, या सुचर होने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द मैनेजमेंट, ठीक है। वो कहता है कि आपने साइनोवेक्टमी कर ली, ठीक है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द पेशेंट, यू, वो कहते हैं आपने उसको पेशेंट को सिंपली हम मैनेजमेंट के लिए या तो एक्यूट स्टेज में लेकर जाते हैं या सब एक्यूट स्टेज में या क्रॉनिक स्टेज में। ऑब्वियसली आफ्टर द सर्जरी हम पेशेंट को एक्यूट स्टेज में लेकर जाते हैं, और एक्यूट स्टेज में हमारा जो गोल होता है डेट इज टू रिड्यूस द पोस्ट ऑफ पेन, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है कि आपने पोस्ट ऑफ पेन को रिड्यूस करना है, आपने कंप्रेशन बैंडेजेस को यूज करते हुए आपने स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि आपने वेट बेयरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। अगर वेट बेयरिंग पेशेंट टॉलरेट कर सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। इसके अलावा कहते हैं रेंज ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, एक्टिव रेंजेस की तरफ लेकर जाना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो सेकंड सब एक्यूट स्टेज है, सब एक्यूट स्टेज में वो क्या कहता है कि जी अब आपने वेट बेयरिंग की तरफ पेशेंट को लेकर जाना है। ऑब्वियसली सब एक्यूट स्टेज में पेन काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो चुका होगा, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम होगी, तो अब आपने पेशेंट को फर्दर प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, आपने पेशेंट की जो स्पाइन की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, आपने उनको बेहतर करना है, ठीक है, आपने फुल वेट बेयरिंग की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि जी जितनी भी आपकी कॉन्ट्रेक्चर्स के चांसेस हैं सराउंडिंग जॉइंट्स में, एसोसिएटेड जॉइंट्स में, लेट्स से एंकल है, हिप है, जितने भी सराउंडिंग जॉइंट्स हैं, एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो सराउंडिंग मसल्स हैं आपने उनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना है। लास्ट में आपके पास रिटर्न टू फंक्शन फेज है। वो कहता है रिटर्न टू फंक्शन फेज में आपके पास जो इन्वॉल्व साइड है जहाँ की सर्जरी हुई है, वो कहते हैं इसका जो फंक्शन है वो 70% होना चाहिए ऑफ द
नॉन इन्वॉल्व साइड और ऑफ द नॉर्मल साइड। जो नॉर्मल साइड है उसकी निस्बत आपका ये 70% फंक्शन उस साइड का जरूर होना चाहिए जिसकी सर्जरी हुई थी, ठीक है। सो वो कहता है कि जी ये जो 70% है दैट विल अलाउ हिम और हर टू एंटर इनटू द लास्ट फेज ऑफ द मैनेजमेंट एंड दैट इज द रिटर्न टू फंक्शन फेज, ठीक हो गया। इसमें वो कहता है कि जी ऑब्वियसली आपके पास जितने भी फंक्शंस होंगे या जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगे आप उनको मैक्सिमम प्रोग्रेस कर दोगे, मैक्सिमम इंटेंसिफाई कर दोगे, ठीक हो गया। जी बच्चों, किसी को कोई समझ नहीं आई तो बताएं। सर आ गई है। सर एनी आपने कहा क्वेश्चन? कि सर 4 सेंटीमीटर का साइज होगा तो हम कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे? बेटा एलोग्राफ 4 से ज्यादा होगा तो। अगर ज्यादा होगा फोर्स से तो एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट मतलब किसी और जगह से लेना, किसी और पेशेंट से लेना है। पेशेंट तो ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है उस पेशेंट से भी जब आप 4 सेंटीमीटर का बड़ा लोगे तो वो तो फिर वो भी रिस्क में चला जाएगा। तो हम ज्यादातर डेड बॉडीज को यूज करते हैं और वहां से आर्टिकुलर कार्टिलेज का पीस ले लेते हैं, थैंक यू ठीक सर। है। सर ये हमारा लेक्चर नंबर 15 चल रहा है। हमारे लेक्चर में क्या चल रहा है? 19। 19। 19 था। सर आपने 15 14 से ऑनवर्ड कोई भी अपलोड नहीं किया हुआ, ना ही मेल किया हुआ है। जी बेटा वो हाँ जी सर काइंडली जल्दी सेंड कर दें। हाँ जी मैं बेटा अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर ही ना, ठीक है। और आप लोगों को मेल भी कर देता हूँ लेक्चर्स, सर रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पे? हाँ जी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर ही होंगी। अब मैं इसलिए नहीं आप लोगों को मेल करता कि वहां पर दोबारा से इशू आ जाता है रिकॉर्डिंग्स का, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अपलोड देम ऑन द यूट्यूब, ठीक है। सर ये आप कब तक लेक्चर सेंड कर देंगे? बेटा इंशाल्लाह आज फ्राइडे है बेटा, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर वो साथ साथ अगर हम पढ़ लें तो आसानी होती है, आप सेंड कर दिया करें साथ ही। ठीक है ठीक है मैं भेज देता हूँ। और सर सर ये वाइवा नीचे कितना? हमारे तीन चैप्टर रह गए हैं। जी सर हमारे कितने लेक्चर रह गए हैं? बेटा अभी आप लोगों के नी जॉइंट का एक लेक्चर और होगा, और इसके अलावा आप लोगों के पास एंकल जॉइंट है, ठीक है। उसके भी ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। टोटल 4 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इससे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स टोटल, ठीक है। मतलब ये जो जनवरी है इसके मिड आखिर तक आपका जाएगा। ठीक है सर। सर वाइवा किसने लेना है? बेटा वाइवा नेक्स्ट वीक में लेना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। सर वेडनेसडे को ले लें, थर्सडे इलेक्ट्रो का। ठीक है वेडनेसडे को ले लेता हूँ। ठीक है सर। लेकिन सर सिलेबस वगैरह सारा कुछ आप मेल कर दीजिएगा पहले ही ताकि हम तैयार कर शुरू कर दें। जी बेटा उसका बेटा वही है सिलेबस, तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ। स्पाइन है और आपका रिस्ट है, ठीक है। सिलेबस आपका वही जी है। जी ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।